Good morning, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So today we are going to deal with new topic, which is coordination. Okay. So is it visible? Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, So see, coordination. As far as coordination is concerned, a place for everything is in its place. So see, coordination is concerned with unifying the action of a group of people for some common purpose. See, when we talk about organization point of view, so we should match our frequency with other frequency. Okay. So many time it's happened. We know so many things and we don't know anything. So in both condition, you try to match your frequency with a person who is standing in front of you. ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. ठीक है, so coordination is concerned with unifying the action of a group of people for some common purpose. It is the job of harmonizing the activities of different individuals or groups, as also of reconciling conflicting interests or approaches. Okay, so so see what happened. तो coordination is concerned with unifying. तो आप जो भी कर रहे हो उसको एक प्रॉपर सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए कर रहे हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ टाइम जो क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो सब जगह ऑन एन एवरेज सिमिलर हो. ठीक है, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, तो एसबीआई जो बैंकिंग सेक्टर है वो फॉलो करता है आरबीआई की गाइडलाइंस को, तो उसका जो वर्किंग है वो सेम वर्किंग है एज कंपेयर टू अदर नेशनलाइज्ड बैंक, दोज हु आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई. तो ये कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, सो आपका बिहेवियर जो कस्टमर के साथ होगा, इंटरेस्ट रेट में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ठीक है, बैंक टू बैंक ऑफ 0.25 0.50 ऐसा स्लाइट डिफरेंस आ सकता है, बट मेजरली देयर इज नो चेंज. ओके, सी देयर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट on an average similar. They are giving personal loan to you. This is also on an average similar. Okay. When we compare in nationalized bank, but definitely there is a little more change in when we compare in nationalized bank as well private bank. So coordination is concerned with unifying the action of a group. Okay, so you are working as a group, as a team, group of people for some common purpose. ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में भी देखो एक कैश काउंटर है. ठीक है, जहां पे हम डिपॉजिट करते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी ड्रॉ सम मनी. ठीक है, और if you are interested to invest your money, there are a number of securities option nowadays available, like share market. You can easily start, open your demat account. If you are interested to invest your money with the help of SIP mutual fund, so this option also available. Suppose you are senior citizen, you don't want more money, you want safety and security of money, so you go through FD and RD,
and see other facilities like locker facilities. So here action of a group of people here, group who perform their activities. कोई कैश संभाल रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंट काउंटर्स को डील कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज लोन सेगमेंट, ठीक है. लोन में भी हाउसिंग लोन मेन है, ठीक है. वैसे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है. हाउसिंग, सी बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, एवरीवन हैविंग mindset to get at least one house, own one house. So for that they try to applying for sanctioning of their home loan. At least in their life everyone want one house, ठीक है. तो स्वीट ड्रीम जिसको बोलते हैं हम सभी लोग चाहते हैं, ठीक है. तो ये दिस इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है. सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. Then next definition. See some authors given definition. First definition: the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common purpose. We were talking about बैंकिंग सेक्टर. एज फार एज ऑटोमोबाइल इज कंसर्न, देखो वहां पे जैसे हम बात करते हैं, सपोज एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू बाय टू व्हीलर, ठीक है. तो आपने टू व्हीलर परचेस किया, ठीक है. तो वहां पे वो जो शोरूम है उसके सामने में कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है जो आपको क्या करते हैं, गाड़ी का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट कितनी है, इसकी एवरेज कितनी है, सीसी कितना है, कौन से कलर्स में अवेलेबल है. So they are providing such a sort of description, ठीक है. While if you are interested to select a vehicle, वो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे कि you are paying cash or you are paying half of cash or half of means आप उसको लोन कराना चाहते हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट से. तो वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो एक डिपार्टमेंट पूछता है, ठीक है. फिर आपकी गाड़ी वो वॉश करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट के पास पूछता है, ठीक है. सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके पार्ट्स वगैरह सारे जो जनरल चेकअप होता है वो करने के बाद उसको प्रॉपर वॉशिंग, बिकॉज यू आर हैविंग न्यू व्हीकल, तो वो प्रॉपरली उसको वॉशिंग करके अच्छे से साफ वगैरह करके आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है. फिर एक दूसरा डिपार्टमेंट आपको सारे पेपर प्रोवाइड करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर आपकी आरसी इतने दिन, आरसी और जो इंश्योरेंस के पेपर है वो कब आएंगे, आप कब कलेक्ट करना. So this is unity of action in the pursuit of common purpose. The main purpose of organization is to sell the vehicle. I am talking about automobile segment, ठीक है. तो ये जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पर्पस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेटली जो ग्रुप एफर्ट है इज टू अचीव द पर्पस ऑफ द organization. Moni and Raleigh, this one is author who gives the this definition. And another definition: a process of so arranging group activity in relation to time, place and effort that each item will take care of itself according to need of the situation, ठीक है. See here in coordination it shows that the foundation between one department to another department, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मधुर संबंध, ठीक है. We ready to give respect and regard to each and everyone. A process so arranging group activities relation to time. See, आपको जो परफॉर्म करना है, there is a time limitation, there is a particular place. Suppose if anyone who told that we
होंडा का शोरूम किधर है, ठीक है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ शोरूम ऑफ होंडा, ठीक है। आज की डेट में अगर हम मार्केट में बात करते हैं तो लोग रॉयल एनफील्ड को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ a number of Royal Enfields, ठीक है। अगर मैं एक्टिवा की बात करूं तो देयर इज अ प्लेस, ठीक है, जहां पे वो चीज अवेलेबल है। effort that each item will take care of itself, ठीक है। तो सारी चीजों का प्रॉपरली जो केयरिंग है, नीड एंड रिक्वायर्ड है, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अगर हम करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो अभी सारी जगह में सेल चल रही है, ठीक है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न। तो इनका भी मेन मोटो क्या है, यही है कि कस्टमर को हाउ टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। तो वो प्राइस जो है एज कंपेयर टू अदर एक्सिस्टिंग, वो कहीं ना कहीं प्राइस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस टू कंज्यूमर एंड कस्टमर टू बाय आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें सेलिंग जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है, बिकॉज ड्यू टू कोरोना आपको पता है हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, सारी चीजें स्लो हैं, ठीक है। तो अब दे आर प्रोवाइडिंग दिस सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। और हर कोई चाहता है कि नाउ ही शुड असेंबल इन अ ट्रैक, ठीक है। तो वो ट्रैक पे आए, अगर वो ट्रैक पे नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो दिस इज स्पेंगल definition given by characteristics of coordination, ठीक है। क्या हो सकता है characteristics? Coordination is synchronization of group effort for achieving object, ठीक है। तो कभी भी हम कोई भी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं उसका मेन मोटो क्या है, उनका मेन मोटो यही है टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट आज की डेट में मोबाइल कंपनीज देखो एन नंबर ऑफ जो फीचर्स जो, ठीक है, वो एन नंबर ऑफ फीचर्स विच इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको बहुत चीप कॉस्ट पे, ठीक है, चीप कॉस्ट पे क्या अवेलेबल है, अच्छे सेगमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये सिंक्रोनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं जो पीपल का माइंडसेट है वो ये है कि वोकल फॉर लोकल, ठीक है। हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है उनको वी रेडी टू गिव द चांस, क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर में थोड़ी सी टेंशन है चाइना के साथ। तो नाउ इंडियंस बाइकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, दे डोंट want to prefer this segment। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो ले रहे हैं, लेकिन काफी लोगों ने अभी कम किया है, ठीक है। ऑल्दो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स वी ऑल आर फैमिलियर की वो मार्केट में काफी चले हैं, ठीक है। तो ये भी दिस इज वन ऑफ द रीजन कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो हम पतंजलि स्टोर्स की भी बात करें तो देखिए उनका जो ग्रुप एफर्ट है वो आउटलेट्स पे सारे सेगमेंट्स ले आ रहे हैं, कि आप पेस्ट की बात करो, आप सोप की बात करो, आप गिलोय की बात करो, बहुत सारा सेगमेंट है, ठीक है। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोर्स इज दैट टू एनहांस और इंक्रीज द प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ाओगे तभी आपका जो एग्जिस्टेंस है वो शो पाएगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेशन रेस्ट्स with the management, ठीक है। See, when we talk about hierarchy,
आपकी जो सैलरी है जब वो मोर पेड हो जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप हाईली पेड हैं, so there is a responsibility in your shoulder and you have to fulfill the expectation of employer, ठीक है, तो responsibility for coordination rests with management, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो हमेशा ध्यान देना है आपको कि आप हर लेवल पे, नॉट ओनली अपर लेवल और लोअर लेवल, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल मस्ट ट्राई टू सिक्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल वर्किंग अंडर दैट, ठीक है, आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप हर लेवल पे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखो, सो दैट at the end of time there is a healthy and energetic environment in our surrounding, and we enjoy our work and honestly complete our duty in a particular time duration. Okay, the next point is it is a continuous and dynamic activity. See what happens, आपका एक objective complete हुआ, then next आपका एक नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट 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 है ना, वो आते जाते, जस्ट लाइक मंथ, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल में, तो ये जो कंटिन्यूस है ना वो आगे बढ़ता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन नए नए टास्क आते रहते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वो टास्क को अचीव करने के लिए डायनामिक एक्टिविटी, जो आपका जो पर्सनालिटी है वो क्या होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज unity of action of group effort. See, the ultimate aim of coordination is to achieving unity of action of group effort and attain the objective of an enterprise. See, अगर यूनिटी ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था, कौन सी स्टोरी बताई है मैंने आपको, ये जो अपने हैंड्स की स्टोरी है, ठीक है, यूनिट, ये जो हमारी उंगलियां हैं, तो अगर ये अलग अलग है, ठीक है, तो इनमें उतना पावर नहीं, लेकिन ये अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, तो ये एक पंच बन जाए, ठीक है, और आप इस पंच को कहीं पे भी जोर से ताकत लगा के यूज कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, सो इट शोज दैट कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो बिखरे हुए हम किसी काम के नहीं, ठीक है, बट हम इफ वी आर कनेक्टिंग ईच अदर, वी सपोर्टिंग ईच अदर, डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एंड ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन को for betterment of upliftment, definitely it gives some sort of value addition, और ये जो value addition है, through this value addition you can easily achieve the task and objective of the organization, आप उसको easily achieve कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। then next elements of coordination, ठीक है, तो what are the elements of coordination? It is an orderly pattern of group effort. See, there is a order or pattern, ठीक है, like introduction, growth, maturity, decline, ठीक है, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो इनिशियली इंट्रोडक्शन फेज पे होता है, ठीक है, तो वो चीजों को क्या करता है, सीखता है, समझता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद देखो, ये इंट्रोडक्शन में क्या होता है, वो अप टू समहाउ क्या होता है, अप टू समहाउ वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, लेकिन इफ ही इज हैविंग सम नॉलेज, वो डिपेंडेंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट बनता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बनेगा, फिर इंडिपेंडेंट बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर पे लेगा, ठीक है, अर्न करेगा, ठीक है, और नाउ ही इज हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, मैच्योरिटी में वो जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं, और एट द एंड ऑफ टाइम
डिक्लाइन यानी खत्म हो जाए। तो सिचुएशन इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, देयर इज अ ऑर्डर, देयर इज अ सीक्वेंस, वन के बाद टू, तो ये होना ही है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि आपका समय आज अच्छा है तो हमेशा ही अच्छा होगा, दिस इज जस्ट मिथ। और द सेम थिंग इज दैट कि अगर आज बुरा समय, इट डजंट मीन कि आप हमेशा ही बुरे समय में रहो, ठीक है। तो टाइम जो है वो हमेशा चेंज होता है। द थिंग इज दैट यू शुड कैरी सम सॉर्ट ऑफ पेशेंस, ठीक है, और वो होना चाहिए। एंड आप अपना जो सिंसियर एफर्ट है वो पुट करते रहो, डेफिनेटली जो टाइम है वो चेंज हो। तो देयर इज अ ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेम है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आगे बढ़ता है, जैसे कि आप लोगों ने अपने आप को देखा होगा, ठीक है। अपने ही फैमिली में जब इनिशियली आपका जो सिचुएशन है जैसा भी है, कैसा है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जब आपको इफ यू आर हैविंग अ जॉब इन योर हैंड, ये आप देखो, आप सिचुएशन ऑटोमेटिक चेंज होगी। द मोमेंट यू विल गेट अ जॉब, आप देखना चीजों को चेंज करना चालू करो और आपको रियलाइज होगा कि यस, मेरा जो ये एजुकेशन का जो पर्पस है वो जस्टिफाई, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ टाइम वी ईच वन ऑफ देम हैविंग माइंडसेट कि हमको एक जॉब मिले, ठीक है। जॉब छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, उससे कोई वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज यू आर हैविंग कोई छोटी सी जॉब है आपकी, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से चलते हो, डेफिनेटली लाइफ ऑल्सो गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। यू शुड आइडेंटिफाई, आपको पहचानना पड़ेगा और आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आपके पास बहुत बड़ी जॉब लग गई, ठीक है, लेकिन अगर आपको इफ यू आर हैविंग एटीट्यूड, इफ यू आर हैविंग आपके अंदर बहुत घमंड आ गया, तो भी वो फिर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलते रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ठीक है। इट ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन as far as organization is concerned, ठीक है। So it brings unity of action because देखो, organization में अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, so we should associate it with people, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हमको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मैच करके चलना है, एक दूसरे से if we are having any problem you have to share, ठीक है। यू ट्राई टू सर्च द अल्टरनेटिव्स कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एंड इफ देखो, एक से भले दो बोलते हैं ना, जो वो है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति इंडिविजुअली माइंड लगा रहा है और दो लोग मिलके लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग सम अल्टरनेटिव इन योर हैंड, और आप उसको उस रास्ते पे चल के यू कैन इजीली अचीव। The next point, it has a common purpose, which accomplishment of organizational objective. Definitely, if you are working in group, if there is a coordination, your purpose is same, accomplish of organizational objective. देखो, ये जो आर्मी होती है, ठीक है, तो आर्मी वालों का जो टास्क होता है वो क्या होता है, they are interested to protect and save the citizen of nation, ठीक है। तो इनका जो कंपनी का ये जो आर्मी है, वो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को स्माइल करके, ओबे विथ स्माइल, ठीक है, आपको उसकी बात माननी भी है विथ स्माइल। इसीलिए वो लोग कभी मतलब हार नहीं मानते, ठीक है। उनका जो गट्स होता है, ठीक है, उनका जो डेयरिंग होता है, ठीक है। तो नाउअडेज व्हाट हैपेंड, ये जो प्लेयर्स होते हैं वो भी हमको आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी वगैरह है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी
ये जो आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए ये करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट तो इंडिया में बहुत पॉपुलर गेम है, बट एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न उसमें बहुत दम लगता है, बहुत ज्यादा आपका पोटेंशियल चाहिए, बहुत स्पीड चाहिए। आपने देखा होगा जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं वो काफी काफी तेज है, ठीक है। और फॉरेन में आप देखेंगे कि क्रिकेट लोग उतना लाइक नहीं करते जितना फुटबॉल लाइक करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में अ पर्सन हु इज हैविंग पोटेंशियल वही कुछ कमाल कर सकता है, ठीक है। तो क्लास के साथ आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, और आपको उसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे एक अकेला प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, देयर इज अ टीम एफर्ट, और वो अगर बॉल पास नहीं होगी तो गोल नहीं होगा, ठीक है। तो इट हैज इन सेम वे इट हैज अ कॉमन पर्पस। तो वो जो प्लेयर्स है उनका सबका पर्पस क्या है, इज टू विन, ठीक है। हम सामने वाले टीम को हराना है विथ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके हराना है, ठीक है। आपको while following instructions and you should obey the rules, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए अपना जो भी क्लास है, स्किल है, ठीक है, टेक्निकल पावर है, उसको यूज करके you should defeat the team who is opponent of you, ठीक है। तो जो आपके अपोजिट में, सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी वही करना है, अपने को परफॉर्म करना है। इफ यू आर परफॉर्मिंग इट मींस नॉट ओनली सिंगल, योर टीम विल परफॉर्म सो दैट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल विल बी अचीव, अदरवाइज इट वोंट बी, ठीक है। इट इज अ मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। तो ये दिस इज कोऑर्डिनेशन इज मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, controlling. तो coordination managerial responsibility है, ठीक है। Then objective of coordination. See, every activity having some objective. So harmony of goals, ठीक है। It is an ordinary pattern of the group effort. There is always danger of conflicts of goals in the minds of the manager and worker because the perception vary from man to man. Therefore, the most important objective of coordination is to create harmony of objective in the minds of the employees. तो देखो ये जो है क्या होता है जब हम एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल जॉब करते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली सबका जो माइंड है वो अलग अलग, तो वी आर हैविंग क्लासेस, हमको हमारे जो थॉट्स होते हैं वो मैच नहीं करते, तो इसमें क्या होता है कई बार कंफ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कंफ्लिक्ट है, ठीक है, कंफ्लिक्ट अगर होगा तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट एक्टिविटी। वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट हेल्दी एनवायरमेंट इन आवर सराउंडिंग। तो ये एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का, हार्मनी ऑफ गोल्स, ठीक है। सबके दिमाग में, दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सबके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिएट हार्मनी, ठीक है। हमको एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। इफ एनीवन हैविंग एनी ऑब्जेक्शन यू शुड कन्वे कि मुझे ये बात कुछ जम नहीं रही या फिर अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन ये सही नहीं, you should convey and you try to discuss it, ठीक है। whether you are in top position or lower, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, ठीक है, क्योंकि if there is a problem definitely there is a solution as well, ठीक है। तो while discussing बहुत सारे प्रॉब्लम we can easily sort out, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। Harmony of goal. Then second point, total accomplishment.
The another main objective of the coordination is to achieve total accomplishment rather than individual effort. ठीक है, देखो क्या होता है, so many time it's happen कि आप individually बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो तो आपका बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और कई लोग इंडिविजुअली इतने अच्छे नहीं होते लेकिन ग्रुप में बहुत अच्छे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबल, थोड़ा एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप फ्लैक्सिबल इन नेचर, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है, you won't having any problem to become rigid, ठीक है, so don't become rigid, try to become flexible. Economy and efficiency, another important objective of coordination is economy and efficiency. The coordination among the various resources of input result in economy and efficiency in the organization. See, economy or efficiency, if there is a efficient manpower, efficient input, efficient process, definitely the result will automatically comes in front of organization will be effectively efficient, ठीक है, तो वो the moment you are having expectation, it's fulfill your expectation. तो इकोनॉमी मीन्स जो प्राइस है, you should always keep this thing in mind कि आपका कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है आप उसके प्राइस के आसपास, ठीक है, आप बहुत ज्यादा चेंज ना हो, ड्यू टू रिसर्च एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, nowadays जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन if you are interested to stay in market, you should always keep this thing in mind कि हम अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस के आसपास, ठीक है, 19-20 चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। The next point, good social relation, integration of individual interest and organizational goals is the primary objective of the coordination. It provides job satisfaction and boosts morale of the employees, and also establish good human relation in the enterprise. देखिए, हमेशा लोग ऐसा बोलते हैं कि आज की डेट में अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है, बट आई डोंट थिंक दिस इज राइट। आज की डेट में लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ठीक है। सो जो अच्छी चीजें होती हैं उसकी वैल्यू कल भी थी, आज भी है और कल भी रहे, ठीक है। तो you should try to maintain good social relation, ठीक है। We should always know our boundaries, हमको कहाँ तक जाना है, कितना frank होना है, ठीक है। Because there is a certain area you do not want to enter anyone, okay. So in this area you are not give or entertain others to join, ठीक है। तो ये एक चीज है, आप हमेशा क्या करते हो, ट्राई टू गुड सोशल रिलेशन, ठीक है। तो गुड सोशल रिलेशन, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड सोशल रिलेशंस, ठीक है। और अच्छे लोगों के साथ ही हम हमेशा रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम कैसे भी हों, लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ है वो लॉयल हो, ठीक है। वो अगर हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो हमारे ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है, हमारे इमोशन को हर्ट ना करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम वो हमको गाइड भी करे,
ठीक है, और वो फेयर हो, ठीक है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? yes. एक सेकंड ना, मैं Yes, sir. ओके देन, हैव अ नाइस डे, ठीक है। Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.